आज हम आपको पढ़ाएंगे गैमेटोजेनेसिस। कल तक आई हैव ऑलरेडी वी आर डीलिंग विद क्लास 12 चैप्टर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन. We have already studied the structure of female reproductive system, the structure of male reproductive system. Once we have studied the structure of male and female reproductive system, now what we need to know is how the gametes are formed in them. The process of formation of male and female gametes, right? The process of formation of male gamete and the process of formation of female gamete is called as gametogenesis, right? तो आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज गैमेटोजेनेसिस एंड मेल गैमेटोजेनेसिस, जिसको हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं, उसको भी आज आपका कंप्लीट करेंगे, राइट? सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम आई विल ओपन माय शीट and I will start teaching you the topic that is gametogenesis. Now let me my pens. Okay, सबसे पहले आ जाए what is gametogenesis. The process by which we make male and female gametes. Male and female gametes को बनाया जाता है. Where will the gametes be formed? Of course, in the gonads. That process is called as gametogenesis. Obviously, क्योंकि human beings में दो तरह के gamete बनते हैं, sexual reproduction है. So one will be the male gamete, right? What is the male gamete called? We know that it is called as sperm. And obviously sperm जिस gonad में बनेगा, we call it as testis. The name of the gonad is testis. So the process by which the sperm is made in the testis of the male, that process is called as spermatogenesis, right? And females में भी obviously आपका gamete बनेगा in human beings. The female gamete, you know that it is called as egg, right? And ये जो egg, जिसको ओवा भी बोलते हैं बेटा, जिसको ऊटिड भी बोलते हैं, ये जो फॉर्मेशन ऑफ एग या ओवा या ऊटिड होगा, ये जिस गोनाड में होगा उस गोनाड का नाम है ओवरी. एंड द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट, दैट इज एग, within the ovary of human females or any organism, that is called as oogenesis, right? So now you know that there are two types of gametogenesis, is basically of two types. One is your spermatogenesis and the other is your oogenesis. ठीक है? So हम आज स्टार्ट करेंगे सबसे पहले विद द फर्स्ट टाइप ऑफ गैमेटोजेनेसिस, दैट इज स्पर्मेटोजेनेसिस. So let us come to the topic directly. स्पर्मेटोजेनेसिस. सबसे पहला आपको क्वेश्चन क्या क्या आएगा? We are studying spermatogenesis. What are few of the questions that will come? First, definition. What is the definition of spermatogenesis? आप define करेंगे the process of making the male gametes, that is the sperms, within the testis of human males. ठीक, क्योंकि आपको human reproduction पढ़ना है तो आप लिखेंगे human males. That is called as spermatogenesis. ठीक है? अब एग्जैक्टली लोकेशन कहाँ होता है, इसको मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है, एक बार मैं फिर से बता दूं. एंड आई विल ऑल्सो शो यू अ डायग्राम टू शो दिस. सो लेट मी शो यू अ डायग्राम टू शो द एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ ये होता है. सो प्लीज लुक एट दिस इमेज. ये मैंने इमेज जो आपके लिए इंपोर्ट किया है, राइट? हियर यू कैन सी इट वेरी क्लियरली दैट ये आपका ह्यूमन टेस्टिस है. Testis is divided into testicular lobules. You can see it very clearly. ये जो lobule है इसके अंदर पाया जाता है seminiferous tubule. You can see it very clearly. अगर इस seminiferous tubule को enlarge किया जाए तो this seminiferous tubule is lined by a special cell called as germ cell. This germ cells undergo meiosis to form the male gamete, that is sperms. That means you have very clearly seen what is the location of this. So एक बार इसको हम लोग यहाँ पर stabilize कर लें और एक बार इसको हम लोग फिर से revise कर लें. Where does spermatogenesis exactly take place? So spermatogenesis takes place within the testis. You can see this. Within the testes are formed lobules called as testicular lobules. Within the testicular lobules are found seminiferous tubules. In this seminiferous tubule, we can also enlarge it a bit. In this seminiferous tubule are found special cells called as germ cells. These germ cells, they form the male gamete. यानी कि in short, the location is, let us write it once here, the location is testis. Testis के अंदर में है आपका testicular lobules. Within the lobules are seminiferous tubules, and within the seminiferous tubules are found special cells called as
germ cells, and it is these germ cells which act as myocytes, and it is these cells which are the last cells which are diploid in nature, which will undergo meiosis to form the male gamete, and this male gamete is called as sperm. So I hope the location, what is the definition, is now very clear to you. The definition of spermatogenesis is very clear. The process by which sperms are found in the testis of human males is called as spermatogenesis. Where does it take place? Within the testis are testicular lobules, which are lined by seminiferous tubules. These seminiferous tubules have special cells called as germ cells, which undergo meiosis to form the male gamete, that is the sperm. राइट तो जब आपका हमारा दो चीज हो गया, डेफिनेशन हो गया, अक्रेंस यानी कि लोकेशन ये आपका हो गया. सो ऑब्वियसली द नेक्स्ट व्हाट आई एम गोइंग टू टीच यू इज द स्टेप्स ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, राइट. द स्टेप्स और व्हाट वी कॉल एज द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, ये अब हम आपको पढ़ाएंगे, राइट. हम आपको इससे पहले स्टेप पढ़ाएं या प्रोसेस पढ़ाएं, आई जस्ट वांट टू टेल यू वन थिंग. You have to remember where it takes place, और उसी को हम थोड़ा सा यहाँ पर पहले enlarge करके exact जो लोकेशन है वो आपको दिखा दे, फिर हम आपको स्टेप बताएंगे. मैंने आपको कहा था टेस्टिस के अंदर we have testicular lobules, उसमें आपका so how does it show, ये अभी जो मैंने आपको डायग्राम दिखाया था, मैं उस डायग्राम को एक बार फिर से I will import it to just make the things little clear, कि हम एक्चुअली डायग्राम आपका कहाँ बनाने वाले और क्या बनाने वाले. एंड आपके एनसीईआरटी का एक और जो डायग्राम है, मैं आपको पहले डायग्राम क्लियर कर दूं सो दैट यू अंडरस्टैंड व्हाट वी आर डूइंग. आपको समझना होगा कि ये जो आपकी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है बेटा, राइट, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, यू कैन सी इट इज सर्कुलर इन आउटलाइन. दिख रहा है ये सर्कुलर इन आउटलाइन है. ये देखो आपका एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो सर्कुलर इन आउटलाइन. इसको जब हम बाहर निकालेंगे इट विल शो समथिंग लाइक दिस. ठीक है, मैं आपको अभी हाइपोथेटिकल, दैट मीन्स आई शोड यू अर्लियर, इट इज मेड अप ऑफ से जर्म सेल्स लाइक दिस. ये जर्म सेल आपका अंडरगो करता है मियोसिस, एंड इस जर्म सेल के बीच में आपके पाए जाते हैं दी स्पेशल सेल्स कॉल्ड एज सर्टोली सेल्स, राइट. सो दिस इज योर जर्म सेल, दिस इज सर्टोली सेल, सो दिस इज अगेन जर्म सेल. ये इसको हमने लेबल कर दिया जर्म सेल और इसको हमने लेबल कर दिया सर्टोली सेल्स. अब हम आपको क्या करने वाले, व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, लेट मी बी टेल यू वेरी क्लियरली, ये पोर्शन केवल हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का हम बाहर निकालेंगे. आई एम गोइंग टू टेक आउट जस्ट दिस मच, ठीक है, विच इज लाइन बाय व्हाट सेल, जर्म सेल, एंड देन आई विल शो यू द एंटायर प्रोसेस. ये जो जर्म सेल एक सेल बनाता है, फिर दूसरा सेल बनाता है, फिर तीसरा सेल बनाता है, एंड देन फाइनली ये स्पर्म बनाता है. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, प्लीज अगेन लुक एट अ डायग्राम फ्रॉम योर एनसीईआरटी. ये आपके एनसीईआरटी का डायग्राम है जो आज हम पढ़ाएंगे भी और आपको समझाएंगे भी, ठीक है. सो इसको भी एक बार देखिए. आप यहाँ पर एकदम क्लियरली क्या देख रहे हैं, व्हाट यू कैन सी, दिस इज योर, you know, this is your germ cell, then spermatogonia. So these are the cells. See, this is the germ cell. फिर ये पहला सेल बनाएगा, फिर मे भी ये दूसरा सेल बनाएगा, ये तीसरा सेल बनाएगा, चौथा, एंड फाइनली आपका स्पर्म बनेगा. ये जो यहाँ चीजें बन रही हैं, मैं केवल इसका यहां से यहां तक मैं यहाँ पर लूंगी और फिर यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी व्हाट आर द सेल्स दैट वर फॉर्म्ड बिफोर वी कुड फाइनली फॉर्म द स्पर्मेटिड और द स्पर्म बनाने के लिए. आर यू गेटिंग माय पॉइंट वेरी क्लियर. मैं ये आपका टेस्टिस में टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में ये आपका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का ये सर्कुलर आउटलाइन, इस आउटलाइन को मैंने यहाँ पर आपको बनाकर दिखाया है. यहाँ पर मैंने आपको बताया मैं पूरे सर्कल को नहीं ले रही हूँ, आई विल बी टेकिंग just a part of this circle, say maybe from here to here, and then I will show you how the steps go on. Here as you can see it, and here as you can see it, ये जो cells आपके बन रहे, just a part of the entire circle has been taken. Now that you are clear कि मैं आपका कैसे बताने वाली हूँ, so now let me clearly come to the steps. ठीक है, so now you understand what is this I made. You know that this is your seminiferous tubule का covering, and this has a special cell. Initially this is called as germ cell. ठीक है, इस germ cell से आपका meiosis होकर this is your myocyte. आपको पता है मैं बार बार बोलती हूँ, this cell is called as germ cells. The germ cell is your myocyte. It is this cell which will undergo meiosis to form the gametes, right? Now before I tell you how the gametes will be formed, you have to listen to me one thing very carefully. और वो one thing जो आपको carefully सुनना है, that is this much, कि एक सिंपल सी बात आपके मन में आनी चाहिए कि मैम हमारा जर्म सेल हमको पता है उसकी प्लॉइडी 2n है,
द प्लॉइडी ऑफ द जर्म सेल इज 2n एंड हमें गैमेट बनाना है जिसकी प्लॉइडी n है और दुनिया में कोई दूसरा ऐसा तरीका नहीं है गैमेट बनाने का अदर देन डूइंग मियोसिस. द ओनली मेथड इज यू डू मियोसिस एंड मियोसिस आप जब करेंगे तो बाय प्रोसेस ऑफ मियोसिस अ डिप्लॉइड सेल इज कन्वर्टेड इनटू हैप्लॉइड सेल. सो व्हाट इज द रॉकेट साइंस. आप मतलब इतना बड़ा चीज क्या पढ़ाने वाले इन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस. हमने तो क्लास 11 में ऑलरेडी पढ़ लिया है कि व्हाट द स्टेप्स ऑफ मियोसिस, प्रोफेज 1, प्रोफेज 2, प्रोफेज like meiosis 1 and meiosis 2 and what are the steps. हमने तो सब क्लास 11 में पढ़ लिया है. So what is so big. आप यहाँ पर अभी क्या पढ़ाने वाले हो, क्योंकि एक चीज याद रखना, मियोसिस को छोड़कर कोई दूसरा तरीका नहीं है एक डिप्लॉइड सेल को हैप्लॉइड बनाने का एंड मियोसिस को छोड़कर कोई प्रोसेस नहीं है आपका गैमेट बनाने का. राइट तो जब मियोसिस को छोड़कर कोई प्रोसेस नहीं है, सो व्हाट इज द रॉकेट साइंस, व्हाट आर वी एक्चुअली डूइंग. ठीक, तो ये बताने के लिए लेट मी गेट बैक टू माय शेयर एंड पहले आप समझ लो कि मैं आपको क्या बताने वाली हूँ एंड देन वी विल अगेन हैव अ डिस्कशन ऑन दिस. पहले केवल नाम सुन लो कि एक्चुअली यहाँ हो क्या रहा है एंड देन वी विल ट्रिगर अ डिस्कशन. सबसे पहले ये जो जर्म सेल्स है, नाउ लिसन टू इट केयरफुली, इट अंडरगोज माइटोसिस, it undergoes mitosis to form a group of to form a type of cells, and these type of cells, they are called as spermatogonia. Right, this is known as spermatogonia. Now I want you to understand this, that since the ploidy of the germ cell, मैं बाद में बताऊंगी, अच्छा मैं ploidy बाद में बताऊंगी, पहले सिर्फ स्टेप सुन लो. This spermatogonial cells will undergo growth, ये ग्रो करेगा. राइट एंड दिस विल फॉर्म अनदर टाइप ऑफ सेल. देखो ग्रो किया है, साइज बड़ा कर दिए. दिस इज कॉल्ड एज प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट. दिस इज कॉल्ड एज प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट. नाउ दिस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट विल अंडरगो मियोसिस 1. ठीक, एंड यू नो दैट मियोसिस 1 में 2 सेल बनते हैं. ठीक है, एंड दीज सेल्स आर कॉल्ड एज सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट. These are called as secondary spermatocyte. Pehle, these secondary spermatocyte will undergo now meiosis 2. It will undergo meiosis 2, and this obviously meiosis 2 के end में 4 सेल बनता है, दोनों से 2-2 सेल्स बनेंगे. These cells are called as spermatids. These are called as spermatids. Now, as you can see, the spermatid is circular, जबकि आपको पता है कि जो sperm होता है वो ऐसा circular नहीं होता, वो ऐसा elongated structures होता है. You know it very well. ठीक, so now this will undergo a process called as differentiation. It will undergo a process called as differentiation to finally form the structure we call as sperms. तो सबसे पहले तो मैंने स्टेप बता दिए, एक बार फिर से देख लो सारे स्टेप्स, फिर मैं आपको बहुत सारी चीजें और बताऊंगी, ईच एंड एवरी स्टेप को मैं समझाऊंगी. मैंने कहा नाउ लेट मी स्टार्ट राइटिंग द प्लॉइडी एज वेल. मैंने आपको कहा सबसे पहले ये जो जर्म सेल्स हैं, they will which are diploid in nature, they will undergo a process called as mitosis to form diploid cells called as spermatogonia. Because abhi mitosis hua hai, to obviously spermatogonia will also be diploid. Now these spermatogonia will undergo growth. सिर्फ वही सेल ग्रोथ कर रहा है, तो उससे जो सेल बनेगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ऑब्वियसली उसकी प्लॉइडी भी 2n होगी क्योंकि ये सिर्फ ग्रो किया है. नाउ दिस विल अंडरगो मियोसिस 1 एंड आपको पता है कि मियोसिस 1 इज अ रिडक्शन डिवीजन. तो सेकेंडरी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट इज द फर्स्ट सेल व्हिच इज हैप्लॉइड इन नेचर. ये आपका हैप्लॉइड इन नेचर होता है. नाउ इट विल अंडरगो मियोसिस 2. आपको पता है मियोसिस 2 बराबर होता है माइटोसिस, सो दिस विल फॉर्म स्पर्मेटिड which is also haploid, and this spermatid will undergo differentiation to again form haploid structures called as sperms. राइट, तो अभी आपने नोटिस किया होगा मैंने 3 चीजें लिखी हैं यहाँ पर. जो लिखा है मैंने, व्हाट आई एम गोइंग टू शो यू इन blue color, these are the steps, process, what are the process it went on. ठीक, so यहाँ पर हम लोग इंडेक्स बना देते हैं. The index is that the blue color is actually showing the process. राइट, उसके बाद आपने देखा होगा मैं यहाँ पर आई एम मेकिंग इट विद येलो कलर ओवर हियर. These are the names of the cells which are formed as a result of the process. इस प्रोसेस से जो आपके सेल्स बने, right? These are the names of the cells. Names of cells formed.
एंड थर्ड आपने देखा होगा यहाँ पर मैंने एक और चीज बनाई है, दैट इज योर प्लॉइडी. व्हाट इज द प्लॉइडी ऑफ दीज सेल्स? आई हैव गिवन इट हियर. ये तीनों चीज जब भी आपको आएगा स्पर्मेटोजेनेसिस लिखने, यू विल श्योरली राइट इट. देखो मैं आपके लिए इंडेक्सिंग भी कर दे रही हूँ, सो दैट व्हेन यू प्रैक्टिस एट योर होम आपको दिक्कत नहीं हो. दिस शोज द प्लॉइडी ऑफ द सेल्स. नाउ वी विल गो थ्रू द स्टेप्स वंस अगेन. पहले स्टेप्स को याद कर लेते हैं, फिर यहाँ पर ग्रॉस स्टेप का जो नाम है वो मैं लिखूंगी, उसके बाद मैं इस पूरे प्रोसेस को आपको समझाऊंगी. लेट अस डू इट वंस अगेन. Right? So what I'm telling you right now is, we know that these cells, these are called as germ cells. These germ cells, they undergo a process. These are germ cells. These germ cells, they are diploid in nature. They undergo mitosis to form a group of cells called as spermatogonia. These are also diploid in nature. The spermatogonia grows in size to form a type of cell known as primary spermatocyte. The primary spermatocyte is also diploid in nature. This undergoes meiosis 1 to form a type of cells which are haploid in nature. This is called as secondary spermatocyte. The secondary spermatocyte will undergo meiosis 2 to form a group of cells called as spermatids, which are haploid in nature. Now these spermatids are circular in outline, जबकि sperms elongated structure होते हैं. So they undergo a process called as differentiation, and finally the male gamete, that is sperm, is formed, and this entire process is called as spermatogenesis. Right? अब आ जाते हैं कि जैसा मैंने आपके साथ अभी डिस्कस किया कि भैया अगर आपको स्पर्म बनाना है तो आपके पास इकलौता तरीका जो था स्पर्म बनाने का वो क्या था? अगर आपको स्पर्म बनाना है तो स्पर्म बनाने का इकलौता तरीका क्या था? आपके पास डिप्लॉयड जर्म सेल था, आप मियोसिस करके हैप्लॉइड स्पर्म बना लेते. तो ये जो इंटरमीडिएट सेल्स है, यू नो द इंटरमीडिएट सेल्स, कि पहले हमने माइटोसिस किया, फिर ग्रोथ किया, फिर जाकर मियोसिस किया एंड फिर जाके स्पर्म बनाया, ये इतना तामझाम क्यों? ये क्वेश्चन हमारे मन में आना चाहिए. भाई आपको अगर गैमेट बनाना था तो आप सीधे मियोसिस करते हैं ना जर्म सेल का और गैमेट बनाते. ये जो बीच के जो सेल्स बनाए आपने, ये जो इतना तामझाम किया, ये क्यों किया? इसका पर्पस क्या था? तब जाकर आपको पूरा प्रोसेस समझ में आएगा. राइट? तो ये समझने के लिए मेरी बात एक बार ध्यान से सुनिए. मेरी बात ये है, सिंपल सी बात ये है, एक बात याद रखना बेटा, अभी हम आपको ये ड्रॉ करके भी बताएंगे. अनलाइक फीमेल, जो हम आपको पढ़ा चुके हैं, लाइट बहुत फ्लक्चुएट कर रहा है. ओके, अनलाइक फीमेल, आपको पता है एक महीने में एक ओवरी एक एग बनाता है. राइट? अनलाइक फीमेल, जहां एक महीने में एक ओवरी एक एग बनाता है, मेल्स में पर इजैक्यूलेट 350 मिलियन स्पर्म्स बनते हैं. एंड एक दिन में मल्टीपल इजैक्यूलेट्स हो सकता है. अनलाइक फीमेल, जहां oogenesis केवल रिप्रोडक्टिव फेज में होता है, दैट इज बिटवीन this phase, क्या बोलते हैं, menarche to menopause, that is it continues only for 40 years. मेल में right from puberty till death spermatogenesis हो सकता है और millions में आपका sperm बनता है. right? एक मिनट, the lighting is having a lot of problem. देखते, ठीक है, millions में आपके sperms बनते हैं. अब एक चीज तुम सोचो, अगर मैं भी आपको कुछ स्टैटिस्टिक्स दिखाती हूँ तब आपको समझ में आएगा कि ये पूरा प्रोसेस हमने क्यों किया है. फिर आई विल कम बैक. सो लेट मी फर्स्ट शेयर माय स्क्रीन विथ यू वंस अगेन. लेट मी कम बैक, आपको तब समझ में आएगा. लेट अस लुक एट हियर. यहाँ मेल एंड फीमेल का हम लोग कंपेरिजन करते हैं. एंड फीमेल में अगर आप देखोगे बेटा, 1 ovary in 1 month makes 1 egg. Female में there is a pair of ovary. Let us draw it very quickly. एक ओवरी एक महीने में एक एग बनाता है, अगले महीने ये ओवरी एक एग बनाता है. राइट? अगर इस टर्म में जाओगे, एक महीना नहीं, ये 28 डेज का साइकिल होता है, तो एक ईयर में लगभग 14 एग्स बनते, ओनली 14 एग्स ओनली. ठीक है? एक महीने में एक ओवरी एक एग बना रहा है, तो 14 एग. अब आपको पता है फीमेल में 40 इयर्स तक आपका रिप्रोडक्टिव एज चलता है. रिप्रोडक्टिव एज से स्टार्ट्स फ्रॉम 10 इयर्स एंड से कंक्लूड्स एट 50 इयर्स, तो 40 इयर्स का होता है.
तो अगर एक साल में 14 एग्स बना है तो 40 इंटू 14 पूरे लाइफ में कितने एग्स बनेंगे? अप्रोक्सीमेटली ओनली 500 इन एंटायर लाइफ। एंटायर लाइफ में केवल 500 एग्स बनने। अब आ जाओ मेल में। मेल में पर इजैक्यूलेट राइट 350 मिलियन स्पर्म्स बनते हैं, ठीक है। एंड वन डे में मल्टीपल इजैक्यूलेट हो सकता है एंड दिस कंटिन्यूज फ्रॉम प्यूबर्टी टिल डेथ। यानी कि मेल में मेल गैमेट ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस में आपके मेल गैमेट्स बनते, राइट। अब अगर हम ये माने कि सपोज अगर हम 350 मिलियन को 1 पर इजैक्यूलेट मानते हैं, तो आपको पता है oogenesis में एक सेल से 4 सेल बनता है। oogenesis में एक सेल से 4 सेल बनता है। तो हमें कितना जर्म सेल चाहिएगा, राइट? कितने जर्म सेल चाहिएगा? तो डिवाइड बाय 4 करो। तो अगर डिवाइड बाय 4 करोगे तो सपोज दिस कम्स टू से अप्रोक्सीमेटली हम 90 मिलियन कर लेते हैं, राइट? यानी कि 1 oogenesis में जहां 350 मिलियन स्पर्म्स बनते, नॉट oogenesis, सॉरी, स्पर्मेटोजेनेसिस में, पर स्पर्मेटोजेनेसिस 350 मिलियन स्पर्म्स बनते पर स्पर्मेटोजेनेसिस। उसके लिए हमें कितने जर्म सेल चाहिए? 90 मिलियन, क्योंकि फिर एक जर्म सेल से 4 गैमेट बनता है, इंटू 4 करोगे तो 350 आएगा। और आपको पता है एक दिन में मल्टीपल टाइम्स इजैकुलेशन हो सकता है एंड इट कंटिन्यूज टिल डेथ। यानी कि तुम सोच लो जर्म सेल कितना चाहिएगा। जर्म सेल भी हम लोग को ट्रिलियन से कम नहीं चाहिए होगा तब, राइट? और अगर जर्म सेल हमको ट्रिलियन में चाहिए होगा तो ऑब्वियसली टेस्टिस का साइज क्या होगा? बहुत बढ़ जाएगा। एक तो ऑलरेडी हमने टेस्टिस को लोब्यूल्स में बांट रखा है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में बांट रखा है टू इंक्रीज द सरफेस एरिया, राइट, ताकि ज्यादा स्पर्म्स बन सके। अब देखो अगर अगला प्रॉब्लम क्या है, अगर हमारा germ cell हमको ज्यादा चाहिएगा, go reverse. If we need more germ cells, we will need more seminiferous tubules, right? If we need more seminiferous tubules, we will need larger testis. If the testis size increases, then the overall size of the body will also increase. As a result, more metabolism will be required, more energy will be required, and पता चलेगा बॉडी का सारा एनर्जी तो केवल स्पर्म बनाने में खर्च हो जा रहा है, तो ऑब्वियसली बचा हुआ काम हमारा बॉडी कैसे करेगा? ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। फिर से समझिए, मैं आपको कह रही हूँ मेल में अगर पर इजैकुलेट की ही बात देखा जाए 350 मिलियन स्पर्म्स बनते किससे हैं? जर्म सेल से बनते हैं। और आपको पता है एक जर्म सेल मियोसिस करके 4 मेल गैमेट बनाता है। तो 350 मिलियन मेल गैमेट बनाने के लिए लगभग हमको 90 मिलियन जर्म सेल्स तो केवल एक बार स्पर्म बनाने के लिए चाहिए। अगर एक बार बनाने के लिए 90 मिलियन चाहिए तो स्पर्म तो लाखों बार होगा बिफोर डेथ। तो ऑब्वियसली हमें जर्म सेल भी क्या है? ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस में चाहिए होगा। अगर हमें जर्म सेल ज्यादा चाहिए होगा तो ऑब्वियसली टेस्टिस का साइज क्या होगा? एनलार्ज कर जाएगा एज प्रोपोर्शनल टू द बॉडी साइज। बॉडी के साइज के हिसाब से 10 आपका बॉडी का साइज हमारा डिस्टर्ब हो जाएगा एंड मैक्सिमम मेटाबॉलिक जो एनर्जी है वो तो खर्च हो जाएगा केवल स्पर्मेटोजेनेसिस में। तो बॉडी के पास बचे हुए काम करने के लिए एनर्जी नहीं बचेगा, राइट? तो हमने क्या सोचा, भैया इतना तामझाम मत करो, जर्म सेल की संख्या लिमिटेड रखो। Let us keep it limited only. We have only limited number of cells, germ cells. Now what you can do it, you know that there is a process called as mitosis, and mitosis is a process by which the number of cells can be increased, right? So rather than keeping large number of germ cells, what we decided is to go with a limited number of germ cells, okay, and make them undergo mitosis so that they could increase their number, number increases as per need, ठीक है, पर स्पर्मेटोजेनेसिस। हर स्पर्मेटोजेनेसिस में हम एक लिमिटेड नंबर से स्टार्ट करेंगे और हम माइटोसिस करके उस लिमिटेड नंबर ऑफ सेल की पहले संख्या बढ़ा लेंगे ताकि जितना हमें स्पर्म चाहिए 350 मिलियन स्पर्म्स, ये लेस नंबर ऑफ जर्म सेल्स के साथ पॉसिबल हो सके। Is that clear? So we undergo mitosis and इस mitosis के बाद जो सेल बनता है
दिस सेल वी कॉल इट एज स्पर्मेटोगोनिया, जैसा कि आपने डायग्राम में देखा था। एंड ये स्पर्मेटोगोनिया का प्लॉइडी कितना होता है? 2 एंड प्लॉइडी होता है, राइट? सो लेट अस गो बैक वंस अगेन टू दैट मेन डायग्राम जहां में मैं आपको पढ़ा रही थी. सो प्लीज लेट अस कम बैक देयर. And I hope आपको ये पहला स्टेप समझ में आ गया, why we undergo this process called as mitosis. And since we do undergo this step called as mitosis, तो मैं आपको इस यहाँ पर मैं इन स्टेप्स का labeling भी I will start. So look at here, the first step, this is called as proliferation phase. Proliferation phase, or this is also called as multiplication phase, because it is this step where multiplication phase, जहां हम लोग माइटोसिस करते हैं, this phase is called as proliferation or multiplication phase, and we do this multiplication so that with a limited number of germ cell we can produce large number of cells so that the right number of spermatogonia or the sperms can be formed. तो ये पहला स्टेप हम माइटोसिस क्यों करते हैं ये आपको समझ में आ गया. द नेक्स्ट फेज जिसमें ये स्पर्मेटोगोनिया को हम साइज इंक्रीज करते हैं, इस फेज को हम कहते हैं ग्रोथ फेज. सो अगला सवाल ये उठता है कि मैम ग्रोथ आखिर हम लोग क्यों कराते हैं, आखिर व्हाई डू वी डू ग्रोथ? तो इसको भी हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं, राइट? सो लेट मी मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड सो दैट आई कैन टेल यू द लॉजिक बिहाइंड दैट. अल्टीमेटली आप देखेंगे गैमेट बनाने का तरीका एक ही है बेटा, दैट इज मियोसिस. लेकिन उससे पहले हमने एक और काम किया, दैट इज ग्रोथ. क्यों किया? नाउ सी दिस. मेरा एक सेल है, ये सेल का नाम अब आप जानते हैं स्पर्मेटोगोनिया, क्योंकि आपको पता है डायरेक्टली जर्म सेल मियोसिस नहीं करता. स्पर्मेटोगोनिया वो पहले माइटोसिस करके अपनी संख्या बढ़ाता है. माइटोसिस करके संख्या बढ़ाने के बाद जो सेल बनता है उस सेल को हम लोग कहते हैं स्पर्मेटोगोनिया, राइट? ये स्पर्मेटोगोनिया से हमें स्पर्म बनाना है. कितना स्पर्म बनाना है? 4 स्पर्म बनाना है. तो जैसे ही वो 4 स्पर्म बनेगा, तो जब 1 से 4 स्पर्म बनेगा तो ऑब्वियसली स्पर्म का साइज क्या होगा? छोटा हो जाएगा, ठीक है? बट एक चीज बता देते हैं, ये स्पर्म एक तो ऐसे माइक्रोस्कोपिक होता है, बट इसका एक स्पेसिफिक साइज एंड शेप होना जरूरी है टू एनेबल इट, इसकी फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को एनेबल करने के लिए. फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को एनेबल करने के लिए इसका एक फिक्स शेप एंड साइज होना जरूरी है. हम आपको बाद में पढ़ाएंगे. अगर स्पर्म जरूरत से ज्यादा छोटा बन गया, जरूरत से ज्यादा छोटा बन गया, तो ये इतना जो उसको लंबा रास्ता मेल में ट्रैवल करना पड़ता है टेस्टिस से आउटसाइड, एंड जो फीमेल में ट्रैवल करता है टिल इट रीचेस द द फेलोपियन ट्यूब, ये कर नहीं पाएगा, ठीक? तो इसका एक पर्टिकुलर शेप एंड साइज होना चाहिए. तो जो स्पर्मेटोगोनिया का एग्जिस्टिंग साइज है, जो एग्जिस्टिंग इसका साइज है बनने के बाद, जो एग्जिस्टिंग साइज होता है, इस साइज के बाद जो स्पर्म बनता है, ठीक, दिस स्पर्म इज टू स्मॉल इन साइज. इसका स्मॉल टू स्मॉल है. एज अ रिजल्ट दिस विल नॉट बी एबल टू फर्टिलाइज एंड हमारा सारा काम खराब हो जाएगा. हमने क्या सोचा, क्योंकि इसको डिवाइड करके 4 में बनाना है एंड 4 बनने के बाद इसकी साइज 1/4 हो जाने वाली है, 1/4 हो जाने वाली है. सो बिफोर इट डिवाइड्स, व्हाई डोंट वी इंक्रीज इट्स साइज? So once we increase the size of the sperms will also become little better. ठीक है? As a result, what will happen? The sperms will be formed of the correct size, and thus they will be able to fertilize in the egg. That is, their fertilizing capacity will be called as accurate. So the next step that we do is growth, right? So let me now come back to that page once again, right? Where we were doing, and now you will understand the steps. This book I will also share with you, children. So now don't worry. Now after growth, why do we call this cell as primary spermatocyte, right? Why do we call this? और इससे पहले हम आगे बढ़े, हम आपको एक चीज बताना चाह रहे हैं. देयर इज नो जस्ट नो प्रोसेस अदर देन, एक बार कृष्णा पीछे का डायग्राम मेरा.
तो आई जस्ट वांट टू टेल यू कि देखो दूसरा कोई प्रोसेस नहीं है आपका गैमेट बनाने का अदर देन मियोसिस, क्योंकि यू नो द प्लॉइडी ऑफ द गैमेट इज हैप्लॉइड, वो एन होता है, एंड द प्लॉइडी ऑफ द ओरिजिनल पेरेंटल सेल वो आपका 2n होता है। तो मियोसिस छोड़कर कोई दूसरा तरीका नहीं है गैमेट बनाने का। लेकिन स्टेप 1 एंड स्टेप 2 हम क्यों करते हैं? स्टेप 1 में हम केवल नंबर बढ़ाते हैं, क्योंकि हमें लिमिटेड नंबर ऑफ जर्म सेल से आपके बहुत सारे मेल गैमेट्स बनाने। एंड सेकेंडली हम ग्रोथ करते हैं ताकि जो स्पर्म हो वो सही साइज का आपका बने, राइट? सो नाउ दैट यू अंडरस्टैंड दिस, हम आई विल कम बैक टू माई स्क्रीन, मैं एक बार अपने स्क्रीन में वापस आऊंगी एंड आई विल कम बैक टू द डायग्राम, जो ओरिजिनल हमारा डायग्राम था। आई विल कम बैक टू दिस डायग्राम एंड हम आपको इस ये बताना चाहते हैं कि आप अगर इसको देखें तो ये जो हमारा डायग्राम है, इफ यू सी ओवर हियर, मैंने आपको बताया था, कहाँ चला गया हमारा पेन? ओके, लेट मी सी, पेन अटैच नहीं हुआ है। यहाँ आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले ये जो हमारे जर्म सेल है, इट अंडरवेंट माइटोसिस। माइटोसिस करके इन्होंने बनाया स्पर्मेटोगोनिया, जो ग्रो करके बनाया आपका प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब सवाल उठता है, इसको हम लोग प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट आपका क्यों बोलते हैं, राइट? व्हाई डू वी कॉल इट एज प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट? प्राइमरी का मतलब क्या होता है? फर्स्ट, राइट? प्राइमरी का मतलब होता है फर्स्ट। आप जो पहले स्कूल में गए थे उसको प्राइमरी स्कूल बोला गया था। ये पहला सेल है। अब इसको, इस सेल को केवल नाम को ब्रेक करके देखो तो आपको पता चल जाएगा। ये पहला सेल है, प्राइमरी सेल है, स्पर्मेटोसाइट, जो स्पर्म बनाएगा। साइट मीन्स सेल, ठीक है, एंड स्पर्मेटो मीन्स स्पर्म। तो जो पहला सेल है जिससे आपका स्पर्म बनेगा, द फर्स्ट सेल विच विल अंडरगो मियोसिस, जो मियोसिस करके स्पर्म बनाने के लिए रेडी है फाइनली। क्योंकि जर्म सेल पहले बनाया स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया बनाया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट फाइनली वो सेल है जो मियोसिस करने के लिए रेडी है, और जो मियोसिस करके स्पर्म बनाएगा वो प्रथम सेल है, सो प्राइमरी। और स्पर्म बनाने वाला पहला सेल है जो मियोसिस करेगा, सो वी कॉल इट एज प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक, तो ये आपको दिखा, ये 2 सेल बनाएगा। आपको पता है मियोसिस 1 में 1 से 2 सेल बनता है, एंड द क्रोमोसोम नंबर आल्सो बिकम्स हाफ। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो ये हो गया आपका। नाउ इससे जो सेल बनता है, वी कॉल दैट सेल एज सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, इस सेल को, इससे जो सेल बनता है इसको हम लोग कहते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सेकंड सेल है। सेकेंडरी मीन सेकंड। आप जो पहले स्कूल में गए थे वो प्राइमरी स्कूल था, दूसरा जो गए थे वो सेकेंडरी स्कूल था। ये सेकंड वैसा सेल है जो मियोसिस करके स्पर्म बनाने के लिए रेडी है, सो वी कॉल इट सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ये मियोसिस 2 करेगा और बनाएगा स्पर्मेटिड। अब प्रॉब्लम क्या है, ये जो आपके स्पर्मेटिड्स है, ये स्पर्मेटिड आपके सर्कुलर इन आउटलाइन है। आप देख सकते हैं ये सर्कुलर है, जबकि स्पर्म आपका इस तरह का इलोंगेटेड स्ट्रक्चर होता है, राइट? क्योंकि ये इलोंगेटेड स्ट्रक्चर होता है तो इसमें बहुत सारे चेंजेस होते हैं। इस चेंजेस को हम कहते हैं डिफरेंशिएशन, एंड डिफरेंशिएशन के बाद ये इलोंगेटेड स्पर्म बनाता है जिसकी प्लॉइडी n है। सो द फर्स्ट फेज जिसमें आपका यू कैन सी द नंबर इंक्रीजेस, इसको हम प्रोलिफरेशन या मल्टीप्लिकेशन फेज कहते हैं। जब वो ग्रो करता है तो इसको हम लोग ग्रोथ फेज कहते हैं। फाइनली जब वो मियोसिस करता है एंड वो गैमेट बनाता है, जब वो इनफैक्ट मैच्योर होता है, इसको हम कहते हैं मैच्योरेशन फेज। एंड उसके बाद जो ये सर्कुलर स्पर्मेटिड को जब हम इलोंगेटेड स्पर्म में कन्वर्ट करते हैं, ठीक, तो उसको स्टेप को कहते हैं डिफरेंशिएशन, पर पूरे प्रोसेस को हम लोग कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। सो दिस इज द डायग्राम व्हिच एक्चुअली आई हैव एक्चुअली टॉट यू। ठीक है, तो अब जब आपका ये हो गया तो चलिए हम आपको ये दिखाते हैं कि मेरे नोट्स में मैंने क्या डायग्राम दिया है एंड फाइनली एक्चुअली आपको क्या पढ़ना है। सो लेट अस लुक एट दैट डायग्राम। ये डायग्राम मैंने आपको नोट्स में दिया है, सो प्लीज वेरी क्विकली लेट अस हैव अ लुक एट इट। इस डायग्राम में अगर आप देखेंगे तो मैंने यहाँ पर लिखा है जो पहला सेल है, जो डिप्लॉयड सेल है, इसको हम लोग कहते हैं जर्म सेल। इसको हम थोड़ा बड़ा भी कर सकते हैं, इसको हम लोग कहते हैं जर्म सेल। ये जर्म सेल माइटोसिस करके बनाता है डिप्लॉयड स्पर्मेटोगोनिया, जो ग्रोथ करके बनाते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, जो फिर डिप्लॉयड है। ये सेल आपका मियोसिस 1 करेगा, बनाएगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जिसकी प्लॉइडी n है। ये करेगा मियोसिस 2 जिससे बनेगा सर्कुलर स्पर्मेटिड। ये स्पर्मेटिड डिफरेंशिएट करके बनाएंगे स्पर्मेटोजोआ। तो ये पहला स्टेप जिसमें आपका संख्या बढ़ता है, इसको हम लोग कहते हैं मल्टीप्लीकेशन फेज। जिसमें ये ग्रो करता है उसको कहते हैं ग्रोथ फेज। जब वो आपका मियोसिस करता है तो उसको कहते हैं मैच्योरेशन फेज।
फेज, एंड फाइनली जब उसमें डिफरेंशिएशन होता है तो हम उसको कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। सो ये डायग्राम बेसिकली मेरा एक्सप्लेन करने का डायग्राम है, बट आई वांट टू टेल यू वन थिंग कि आप लेकिन अपने एग्जाम में वही डायग्राम बनाएंगे जो आपके एनसीईआरटी में है। तो लेट मी इंपोर्ट the diagram which is in your NCERT. So let me do that once first quickly. ठीक है, और यहाँ पर देखिए आपका क्या बना है और एग्जाम में आप यही बनाएंगे। चलिए हम दोनों को कंपेयर करते हैं। कंपेयर करने के लिए लेट अस सी, सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया था विद अ सेल कॉल्ड एज जर्म सेल, और उसके बाद मैंने कहा था ये माइटोसिस करके बना था स्पर्मेटोगोनिया, बट आपके एनसीईआरटी में इट हैज स्टार्टेड डायरेक्टली फ्रॉम स्पर्मेटोगोनिया एट प्यूबर्टी। तो बोर्ड एग्जाम में जब आएगा तो अगर डायग्राम बनाने आएगा तो आप यहीं से लिखेंगे। उसके बाद आपके बोर्ड एनसीईआरटी में लिखा है इट अंडरगोज माइटोटिक डिफरेंशिएशन, जबकि मैंने कहा था इट अंडरगोज ग्रोथ। तो आप बोर्ड एग्जाम में ग्रोथ नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे यहाँ पर माइटोटिक डिफरेंशिएशन। उसके बाद के जो भी स्टेप्स है वो आपके इसके और मेरे सेम है। ये कहता है उसके बाद बनाएगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, तो एनसीईआरटी में भी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है। फिर ये करेगा फर्स्ट मियोसिस, मैंने भी लिखा है मियोसिस 1, इससे बनाएगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, मैंने भी यही बनाया। फिर ये करेगा सेकेंड मियोसिस, यहाँ लिखा है मियोसिस 2, तो ये बनाएगा स्पर्मेटिड्स, मैंने भी स्पर्मेटिड लिखा है। ये डिफरेंशिएशन करेगा, डिफरेंशिएशन और बनाएगा इलोंगेटेड स्पर्मेटोजोआ, इट इज सेम। सो हियर ऑनवर्ड हमारा लेबलिंग सेम है। इसके अलावा आपने नोटिस किया होगा मैंने यहाँ हर जगह पर प्लॉइडी लिखी है। ओके मैंने यहाँ पर हर जगह यू हैव सीन प्लॉइडी लिखी है, तो आपके एनसीईआरटी में भी प्लॉइडी है, पर 2n नहीं लिखा। कहता है ये सारे सेल टिल मियोसिस 1, ये सेल 46 क्रोमोसोम के, देन द क्रोमोसोम नंबर बिकम्स हाफ एंड इट गोज टिल द स्पर्म। यहाँ पर जो मैंने स्टेप बनाया मल्टीप्लिकेटिव फेज, ग्रोथ फेज, मैच्योरेशन फेज एंड स्पर्मियोजेनेसिस, ये आपके एनसीईआरटी के डायग्राम में नहीं है। फिलहाल मैंने आपको ये बताया कि जो ये आखिरी स्टेप है जिसमें आपका ये जो आखिरी स्टेप है जिसमें ये सर्कुलर स्टोमैटिड कन्वर्ट होता है इनटू इलोंगेटेड स्पर्म, इसको हम लोग कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। तो चलिए देखते हैं स्पर्मियोजेनेसिस में बेसिकली आपका क्या क्या होता है। So let us see that once. So स्पर्मियोजेनेसिस का मैं आपके साथ एक डायग्राम शेयर करूंगी so that you can understand। ये मैं आपको एक्स्ट्रा पढ़ा रही हूँ, ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है। व्हाट आर द चेंजेस दैट टेक प्लेस ड्यूरिंग स्पर्मियोजेनेसिस, ये जस्ट हम आपके इंटरेस्ट के लिए आपके साथ बना रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका सर्कुलर स्पर्मेटिड है, और ये सर्कुलर स्पर्मेटिड अल्टीमेटली ये इलोंगेटेड स्पर्म बनाता है, और इस पूरे प्रोसेस को हम लोग कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस, राइट इसको हम कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। एक्चुअली स्पर्मियोजेनेसिस में क्या क्या चेंजेस होते हैं वो बताने के लिए हम आपका यहाँ पर एक डायग्राम और इंपोर्ट कर रहे हैं। लेट मी इंपोर्ट अनदर डायग्राम एंड दिस इज द डायग्राम एंड आई वांट यू टू, ये जो एक स्पर्म का डायग्राम यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है, मैं चाहती हूँ कि ये जो एक स्पर्म का डायग्राम है इसको भी आप लोग थोड़ा सा ऐसे क्लियरली देखिए। ठीक है, एक मैंने यहाँ ऐड कर दिया स्पर्म का डायग्राम। सबसे पहले बताते हैं रोल ऑफ गोल्जी बॉडी, what are the changes that occur in Golgi body। तो as you can see जितना भी इस स्पर्मेटिड में गोल्जी बॉडी है, सारे गोल्जी बॉडी एंटीरियर एंड में इकट्ठे हो जाते हैं एंड कोइलेज करके एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको कहते हैं एक्रोजोम। ये एक्रोजोम क्या है, अगर यहाँ पर देखोगे तो अगर ये स्पर्म का हेड है तो स्पर्म के हेड में एक ऐसे प्रोट्रूडेड स्ट्रक्चर होता है, इसमें एक थैली होती है जिसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाया जाता है। नाउ व्हाट इज दिस हाइड्रोलिटिक एंजाइम, द मोमेंट द स्पर्म रीचेस द एग, ठीक है, तो ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम रिलीज करता है जिससे ये एग का मेम्ब्रेन डिसॉल्व करता है। डिसॉल्व करने की वजह से बाद में ये जो आपका मेल में जो आपका न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस फाइनली एग के अंदर जा पाता है। सो ये जो आपका ऊपर वाला पोर्शन है जिसको मैंने अभी आपको बनाया, मैं कलर चेंज कर रही हूँ, जिसको हम एक्रोजोम बोलते हैं, ये एक्रोजोम बनता है ड्यू टू गोल्जी बॉडी। सो ऑल द गोल्जी बॉडी दे कोइलेज एट वन एंड एंड फाइनली जो यहाँ पर आप रेड कलर का कवरिंग देखिए यहाँ पर दिख रहा है, ये एक रेड कलर का कवरिंग न्यूक्लियस के चारों तरफ बनाते हैं जिसको हम लोग कहते हैं एक्रोजोम। So this is first change that takes place। अब आ जाओ सेकेंड चेंज हम आपको बताएंगे इन द चेंज ऑफ सेंट्रियोल, राइट, इन द चेंज ऑफ सेंट्रियोल। ये जो स्ट्रक्चर है, लेट मी ड्रॉ दिस डायग्राम लिटिल बिग, इसके अंदर दो सेंट्रियोल होता है, दिस स्पर्मेटिड में दो सेंट्रियोल होता है, दोनों सेंट्रियोल यहाँ नीचे की तरफ आ जाते हैं। यू कैन सी यहाँ दोनों सेंट्रियोल इस तरफ में आ जाते हैं। दोनों सेंट्रियोल का काम क्या है, इसमें से जो नीचे वाला सेंट्रियोल है ना जिसको डिस्टल सेंट्रियोल बोलते हैं, ये तो आगे जाके देखिए स्पर्म का टेल बनाता है। यू कैन सी इट हियर, ये तो आपका टेल बनाता है। और ये जो एंटीरियर सेंट्रियोल है ना, ये जब क्या होता है, आई विल शो यू वंस अगेन। ओके लेट मी डायग्राम को छोटा बना दूं। तो ये जो एंटीरियर सेंट्रियोल है ना, तो ये जब स्पर्म, ये एग है समझिए आपका, और ये जब आपका फर्टिलाइज करता है एग के साथ,
ये इसका स्ट्रक्चर है। ये जब जाता है तो ये केवल न्यूक्लियस नहीं देता है, ये न्यूक्लियस भी देता है और एंटीरियर सेंट्रियोल भी देता है। ये सेंट्रियोल का काम क्या है, ये जो एग है ये डिवाइड करके क्या बनाएगा, ये तो जाइगोट बन गया, फर्टिलाइजेशन के बाद 2n जाइगोट बन गया। ये डिवाइड करेगा, माइटोसिस करेगा एम्ब्रियो बनाने के लिए, राइट। माइटोसिस करेगा तो इसमें सेल डिवीजन होगा, और आपको पता है सेल डिवीजन में सेंट्रियोल की जरूरत होती है क्योंकि सेंट्रियोल आपके स्पिंडल फाइबर बनाते हैं। तो ये जो एग जो जाइगोट बना, जाइगोट के बाद जब एम्ब्रियो बनाएगा, उस एम्ब्रियो बनाने में जो ये स्पिंडल फॉर्मेशन के लिए सेंट्रियोल, वन ऑफ द सेंट्रियोल इज कंट्रीब्यूटेड बाय द मेल। सो इसमें जो 2 सेंट्रियोल होता है, लेट अस लुक एट दिस डायग्राम वंस अगेन। इसमें से एंटीरियर सेंट्रियोल इज गिवन टू द फीमेल, ठीक है, ताकि ये स्पिंडल फॉर्मेशन में मदद करे एंड ये एक्चुअली हेल्प करे इन कन्वर्टिंग जाइगोट इनटू एम्ब्रियो। और जो डिस्टल सेंट्रियोल है इट एक्चुअली फॉर्म्स द टेल, राइट। सो नाउ दैट यू अंडरस्टैंड दिस, सो सेंट्रियोल का काम क्या है आपको पता है। वन, फर्स्ट सेंट्रियोल गोज टू एग, ठीक है, एंड आफ्टर द जाइगोट इज फॉर्म इट हेल्प्स इन स्पिंडल फॉर्मेशन, it helps in single formation, and there's a second centriole है जो distal centriole है, this distal centriole it helps in the formation of tail। ये हो गया आपका सेंट्रियोल कंप्लीट। नाउ वंस सेंट्रियोल के रोल बता दी, अब नेक्स्ट आ जाते हैं आपका माइटोकॉन्ड्रिया। नाउ लेट अस कम टू द माइटोकॉन्ड्रिया। जितने भी माइटोकॉन्ड्रिया है ये सारे एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर सारे माइटोकॉन्ड्रिया एक जगह इकट्ठे हो गए, सारे के सारे। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होगा उतना एनर्जी प्रोड्यूस होगा, उतनी रफ्तार से स्पर्म का मूवमेंट आपका हो सकेगा, राइट। सो दिस माइटोकॉन्ड्रिया का जो चेंजेस हम आपको बता दिए, दे ऑल कोइलेज एट वन प्लेस, यू कैन सी हियर दे ऑल कोइलेज एट वन प्लेस, ऑल द माइटोकॉन्ड्रिया, राइट। नाउ वी विल आफ्टर माइटोकॉन्ड्रिया वी विल डू द रोल ऑफ, अब कौन सा बच गया, साइटोप्लाज्म, राइट। साइटोप्लाज्म आप देख सकते हैं ग्रेजुअली, ये देखिए शेड ऑफ है और ये शेड करके हटा देगा। मैंने कहा था कि स्पर्म में लगभग नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म होता है, नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म होता है। व्हाई? सो दैट द वेट बिकम्स इजी एंड इट कैन इजीली मूव। ये हो गया। तो हम आपको साइटोप्लाज्म, सेंट्रियोल इसका, और लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट व्हाट इज द रोल ऑफ द न्यूक्लियस। ये जो न्यूक्लियस है इट गेट्स इलोंगेटेड, ये एकदम इलोंगेटेड आ जाता है, ये टिप में आ जाता है ऐसे, ताकि जैसे स्पर्म आपका एग से मिले ये एक ही काम करेगा, ये अपना न्यूक्लियस इसको दे देगा, इसका काम खत्म, एक सेंट्रियोल दे देगा, काम खत्म। और जो बचे हुए पार्ट है स्पर्म के, ये एग के बाहर ही आपका डीजेनरेट कर जाते हैं, right? So these are the how this circular spermatid it gets converted into a elongated sperm. ये मैंने आपको बता दिया। So finally now that we have done it, so let us once revise what is the structure of the sperm. तो चलिए एक बार हम लोग sperm का structure देखते हैं। इसके लिए भी मैंने आपका जो NCERT का डायग्राम है मैं यहाँ पर आपका यहाँ डाल दूं, प्लीज कम हियर, मैं आपको बनाकर दिखाती हूँ। सबसे पहले मेरे डायग्राम में इसमें थोड़ा चेंजेस होगा, लेट अस सी। सबसे पहला हम बनाएंगे हेड रीजन, और मैंने आपको बताया हेड में एक पॉइंटेड रीजन होता है, इसको हम लोग कहते हैं एक्रोजोम। यहाँ पर एक पॉइंटेड वेसिकल जैसा स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग बोलते हैं एक्रोजोम। और आपको पता है हेड रीजन में एक इलोंगेटेड काफी बड़ा ये न्यूक्लियस पाया जाता है। सो दिस इज योर न्यूक्लियस, राइट, एंड दिस रीजन इज कॉल्ड एज द हेड रीजन। This is called as the head region. Now let us now come to the next part, that is your neck region. ये जो neck region है, ये जो neck है, इसमें पाया जाता है 2 centriole, ठीक। So I will label it as centriole, and this region is called as your neck region. This is your neck, ठीक। फिर आएगा आपका middle piece, middle piece को मैंने color फिर change कर दिया। Now this is your middle piece, I am labeling it as this part is called middle piece. I call it as middle piece, and इसमें न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है एनर्जी रिलीज करने के लिए। सो इसकी लेबलिंग में यहाँ पर आएगा आपका माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ आएगा आपका माइटोकॉन्ड्रिया। एंड लास्ट पार्ट बट नॉट द लीस्ट, एज यू नो द लास्ट पार्ट इज योर टेल। दिस इज योर टेल जो एक्चुअली डिस्टल सेंट्रियोल से आपका बनता है। सो दिस रीजन इज कॉल्ड योर टेल। चलिए इसको हम लोग NCERT के डायग्राम से मिलाते हैं। दिस पार्ट इज हेड, एज आई ड्रू दिस इज द हेड, ठीक है। इसमें हम लोग अब कलर चेंज कर देते हैं। इसमें आपके NCERT में एक एक्स्ट्रा लेबलिंग है, दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके अलावा देखिए एक्रोजोम एंड न्यूक्लियस कंटेनिंग क्रोमोसोमल मटेरियल, दिस इज हेड। फिर यहाँ पर इसका नेक इस साइड बना दिया है मैंने, नेक यहाँ बनाया और इसमें सेंट्रियोल का लेबलिंग नहीं है। फिर यहाँ पर मिडिल पीस इस साइड बना दिया है मैंने, मिडिल पीस इस साइड बनाया था, राइट, एंड इसमें लिखा है माइटोकॉन्ड्रिया, मैंने भी माइटोकॉन्ड्रिया बनाया। इसके अलावा इसमें बनाया है टेल। दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट डायग्राम विच यू मस्ट लर्न।
इसके अलावा मैंने एक इंपॉर्टेंट डायग्राम आपके साथ अभी तक बचा के रखा है. सो लेट मी, मैंने कहा था जब सही समय आएगा तो हम कराएंगे. तो ये जो आपका स्पर्मेटोजेनेसिस का ये जो डायग्राम है, द सेक्शनल व्यू ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल. अब आपको ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का सेक्शनल व्यू समझ में आएगा. ये डायग्राम में क्या है, देखिए यहाँ पर आपका सबसे पहले यहाँ पर होगा जर्म सेल. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जर्म सेल लेबल देंगे, फिर उससे क्या बनेगा, स्पर्मेटोगोनिया. ठीक, तो ये आपका दिखा रहा है, सी आई विल जस्ट चेंज द कलर. ये सेल आपका दिखा रहा है स्पर्मेटोगोनिया, राइट. आपको पता है स्पर्मेटोगोनिया, सो दिस इज सी स्पर्मेटोगोनिया. दिस विल डिवाइड टू फॉर्म सेल्स कॉल्ड एज प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट. तो ये आपका प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट. ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट फर्दर डिवाइड करेगा, बनाएगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट. सिंस सेकेंडरी, दिस विल फॉर्म स्पर्मेटिड एंड दिस स्पर्मेटिड विल डिफरेंशिएट टू फॉर्म द स्पर्मेटोजोआ. राइट, सो दिस डायग्राम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. उस वक्त मैंने इसलिए नहीं पढ़ाया था सेक्शनल व्यू ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, क्योंकि आपको केवल ये पता था कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में दो तरह के सेल है, जर्म सेल एंड सर्टोली सेल. ठीक, ये जर्म सेल्स जो है ये एक सीरीज ऑफ सेल्स बनाते हैं बिफोर दे कैन फॉर्म द स्पर्म. व्हाट आर दो सीरीज ऑफ सेल, दे आर स्पर्मेटोगोनिया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड. तब जाके फाइनली स्पर्म बनता है. ये स्पर्म का हेड सर्टोली सेल में एम्बीड करता है, ये नरिशमेंट लेता है एंड फिर ये नरिशमेंट लेकर फाइनली आपका बाहर की तरफ रिलीज होता है. अ प्रोसेस कॉल्ड एज स्पर्मिएशन. राइट, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज परमिएशन. ठीक है, आई अगेन से, ये जो आपका स्पर्म बना, ये स्पर्म का हेड सर्टोली सेल के हेड में एम्बीड करता है. एम्बीड करके ये नरिशमेंट लेता है. नरिशमेंट लेकर ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से बाहर आता है. आपको पता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से कहां बाहर आएगा, ट्यूबुली रेक्टी. ट्यूबुली रेक्टी से रेटी टेस्टिस, वास एफ्रेंशिया, एपिडिडाइमिस, ये बाहर निकलता है. ये जो नरिशमेंट लेकर बाहर निकलता है, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं स्पर्मिएशन. Is that clear? So with that, I have taught you what I have taught you today. Let me tell you very quickly. मैंने आपको आज पढ़ाया है what is the process of spermatogenesis, what is gametogenesis, what is spermatogenesis, where does it occur, what are the steps of spermatogenesis, what is how does the spermiogenesis take place, what is the structure of the sperm. मैंने आपको ये बताया. यहाँ तक सेक्शनल व्यू ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को भी डिस्कस किया है. राइट, सो नाउ बिफोर आई वाइंड अप, आई विल जस्ट टेक अ वेरी क्विक रिविजन of what I have taught. चलिए उसका हम लोग एक क्विक रिवीजन कर लें. तो उस रिवीजन में आई नीड सम डायग्राम्स. सो सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया स्पर्मेटोजेनेसिस. सो मैंने आपको पढ़ाया स्पर्मेटोजेनेसिस में पहले जर्म सेल, the diploid germ cell undergo mitosis to form diploid spermatogonia, which undergo growth to form primary spermatocyte, which undergo meiosis to form secondary spermatocyte. This goes meiosis to form spermatid, which differentiates to form sperms. This is spermiogenesis, maturation phase, growth phase and multiplication phase. However, I reminded you कि ये आपके NCERT के डायग्राम से अलग है. आपके बोर्ड एग्जाम में जब भी डायग्राम आएगा तो आप अपने NCERT का डायग्राम बनाएंगे जिसमें थोड़े से चेंजेस हैं. मैंने आपको ये चेंजेस भी बताया था. आप स्पर्मेटोगोनिया से स्टार्ट करेंगे और यहाँ ग्रोथ नहीं माइटोटिक लिखेंगे. इसके बचे हुए स्टेप सेम है और यहाँ 2n and n की जगह आप 46 and 23 बनाएंगे. Is that clear? फाइनली मैंने आपको पढ़ाया स्पर्मियोजेनेसिस से बनेगा स्पर्म. तो मैंने फिर आपको स्पर्म का डायग्राम पढ़ाया. What is the diagram of एक तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का मैंने स्ट्रक्चर पढ़ाया. सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर में ये स्पर्मेटोजेनेसिस के जो स्टेप्स है वो मैंने आपको पढ़ाया. स्पर्मेटोगोनिया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटिड, स्पर्म, मैंने ये सारे स्टेप्स आपको पढ़ाए. उसके बाद फाइनली, ठीक है, आपका जो है मैंने आपको पढ़ाया स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन स्पर्म. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम. इसमें मैंने आपको पढ़ाया this is basically made up of 3 stages head. This is your head, this is your neck, this is your middle piece and the last part is called tail. Head has plasma membrane, acrosome, nucleus containing chromosome material. Neck has centriole जिसका डायग्राम जो आपके लेबलिंग में NCERT में नहीं है. Middle piece has numerous mitochondria and the last part is called the tail. Right? So I hope आपको आज मैंने जो टॉपिक पढ़ाया है that is spermatogenesis, then the process of spermiogenesis, the structure of sperm and the sectional view of seminiferous tubule. I hope आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई.